جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات جاری۔ ویسٹ منسٹر بے میں دعائیہ تقریب۔ رائل نیوی کے 142 آفیسرز میت لے کر ویسٹ منسٹر بے پہنچے تو شرکاء احتراماً کھڑے ہوئے۔ ملکہ کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے 1 منٹ کے وقفے سے 96 مرتبہ گھنٹیاں بجائی گئیں۔ جہانی ملکہ کے ونسر کیسل میں تدفین کی جائے گی۔ جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات۔ ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ویسٹ منسٹر ایبے ہال آمد۔ ریورنڈ ڈاکٹر ڈیوڈ ہالے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دعائیہ تقریب میں غیر ملکی شاہی خاندان کے افراد، سربراہان مملکت و حکومت اور ان کے نمائندے شریک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے۔ 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم گلوبل فوڈ سیکورٹی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں سے اہم 2 طرفہ ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم ممتاز امریکی اخبار اور ذرائع ابلاغ کو انٹرویوز بھی دیں گے۔ اقوام متحدہ سیکریٹریٹ میں پاکستان میں سیلاب سے تباہی سے متعلق تصویری نمائش کا انعقاد۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں اجاگر کی گئی ہیں۔ نمائش اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران جاری رہیں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے ریفرنس پر سماعت کی۔ محسن شاہنواز رانجھا اور پی ٹی آئی وکلاء پیش۔ عمران خان توشہ خانہ سے متعلق سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ تحائف فروخت کرنے کی رسیدیں فراہم کرنا ہوں گی۔ رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہنواز رانجھا۔ ممبر الیکشن کمیشن سے نثار دورانی کی تعیناتی کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودھری فواد کی درخواست خارج کر دی۔ آئین ممبر الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹانے کا فارم فراہم کرتا ہے۔ عدالت آئینی اختیار وہاں استعمال کرتی ہے جہاں متعلقہ فارم موجود نہ ہو۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 میچز کی T20 سیریز کا آغاز کل سے کراچی میں ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس AG پر ہوگا براہ راست۔ ٹکٹ کے ذریعے پہلے میچ سے حاصل ہونے والی آمدنی پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرائی جائے گی۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔
नाज़रीन, आपको आगाह करें कि बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन के सिलसिले में दुआया तकरीब वेस्ट मिनिस्टर एबे में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत शाही ख़ानदान के अफराद, सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत और उनके नुमाइंदे आखिरी रसूमात में शरीक हैं। आजहानी मलिका को खराजी अकीदत पेश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचे तो रेवरेंड डॉक्टर डेविड होले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। आजहानी मलिका की आखिरी रसूमात में दुनिया भर से 500 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। रॉयल नेवी के 142 ऑफिसर्स मैयत लेकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे तो जनाजे के शुरका एहतरामन खड़े हो गए। वेस्टमिंस्टर एबे हॉल में सर्विस से कबल 1 मिनट के वक्फे से 96 मरतबा घंटियों को बजाया गया। मलिका एलिज़ाबेथ दोम को उनके मरहूम शौहर ड्यूक ऑफ एडिनबरा के साथ किंग जॉर्ज शशम मेमोरियल चैपल में दफन किया जाएगा। सरकारी हुकाम के मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात को बरतानिया भर के पार्कों, चौराहों और सिनेमा घरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का एहतमाम किया गया है। बरतानिया में आम तातील है और सरकारी दफातर और कारोबारी इदारे भी बंद हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना के अरकान और आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। तफसील से आगाह कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में मौजूदगी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शिरकत के अलावा फ्रांस और स्पेन के सदूर और ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम सेनेगाल और अफ्रीकी यूनियन के सदर ने किया है। 21 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर, IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के अलावा ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी और फिनलैंड के सदर साउली निनिस्ता से भी मुलाकात करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अमेरिका के सदर जो बाइडन की तरफ से दिए गए इशाये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के सदर और उनकी अहलिया के एजाज में जोहराना भी देंगे। 22 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म की माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात होगी। इसी रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से उनके दफ्तर में मुलाकात के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन, जापान और लग्जमबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशिया के हम मनसब इस्माइल साबरी याकूब से भी मुलाकात होगी। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुमताज़ अमरीकी अखबार और ज़राए इब्लाग को इंटरव्यूज भी देंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हाँ, मसूद खालिद आगाह कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क के दौरे और जनरल असम्बली से खिताब के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या प्रोग्राम है। इजलास में शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ जो मुमताज़ अखबारात हैं अमरीका के जो चैनल्स हैं, ज़राए इब्लाग हैं, उनको इंटरव्यूज़ भी देंगे। और नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कि बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन के सिलसिले में दुआया तकरीब वेस्टमिंस्टर एबे में जारी है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत शाही ख़ानदान के अफराद शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और उनके नुमाइंदे भी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शरीक हैं। आजहानी मलिका को खराजी अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। दुनिया भर के आलमी रहनुमा और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद हैं इस तकरीब में शिरकत के लिए और उन्होंने चार्ल्स III से अपनी जो अफसोस का इजहार भी किया और उनकी वालिदा की जो खिदमात हैं उनको भी खराजी अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें किंग की, तो उन्होंने भी किंग चार्ल्स सोएम ने भी लाखों की तादाद में जो लोगों की आमद है या जो मोहब्बत है उस पर भी उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज इस मौके पर पहुंचे बरतानिया, तो उनका
استقبال کیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چرچ میں موجود مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے ہیں، جبکہ مختلف ممالک کے سربراہان حکومت اور ان کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ 2 میل کا مجموعی طور پر یہ فاصلہ ہے جس میں آج اس تابوت کو لندن میں ایک آخری مرتبہ لوگوں کو دیدار کا موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ملکہ کی تدفین کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور بھی کر رہا ہے، جبکہ برطانیہ بھر سے، دنیا بھر سے مختلف لوگ لندن پہنچے ہیں اور اس روٹ تک پہنچنے میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، بہت سارے بیریئرز لگائے گئے تھے، بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں، برطانوی میرینز کو بھی تعینات کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود برطانیہ کے بہت سارے شہری اپنی ملکہ سے اظہار عقیدت کرنے کے لیے اور ان کے آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے ان بیریئرز کو، ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اس روٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تاکہ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہی ملکہ کے آخری رسومات میں شرکت کر سکیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے اوقات کار طے کیے گئے تھے جس میں ملکہ کے آخری دیدار کے لیے لوگوں کو عام طور پر انہیں دعوت دی گئی تھی اور بڑی طویل قطاریں تھیں، 6 کلومیٹر تک نازیہ طویل قطاریں تھیں جس میں لوگ موجود تھے، اور یہ ابھی مناظر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ ملکہ کے تابوت کو لے جایا جا رہا ہے اور آج انہیں سپرد خاک کیا جائے گا اور ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ پر 70 برس تک حکومت کرنے والی ملکہ کا جو تاج ہے وہ ان سے الگ کر لیا جائے گا پہلی مرتبہ، اور یہ تاج جو پہنچے گا کنگ چارلز کے پاس، جو کہ برطانیہ کے شاہی حکمران ہیں، نئے حکمران ہیں برطانیہ کے، اور شاہی خاندان کی اب سرپرستی کریں گے کنگ چارلز سوم۔ ان کے ساتھ ساتھ آج پورا شاہی خاندان آخری رسومات میں شرکت کر رہا ہے۔ بالکل جی، اور ملکہ الزبتھ دوم کی بات کریں تو ان کے مرحوم شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا کے ساتھ کنگ جارج ششم میموریل چیپل میں ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ سرکاری حکام کا مطابق ملکہ کی جو آخری رسومات ہیں اس کو برطانیہ بھر کے پارکوں، چوراہوں اور سینما گھروں میں لوگوں کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور 8 ستمبر کو ان کے انتقال کی خبر پہنچی۔ ابھی تک وہاں پر قومی پرچم سرنگوں ہے اور آخری رسومات تک قومی پرچم شاہی طریقہ کار کے مطابق سرنگوں رہتا ہے، اور ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید 7 دن تک جو ہے یہ جو سرنگوں رہنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس موقع پر وہاں پر موجود ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی کنگ جو نئے منتخب ہوئے ہیں، جنہوں نے تخت نشینی سنبھالی ہے، دی 3rd سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے پاکستان کی عوام اور جو حکومت کی طرف سے اظہار تعزیت بھی کیا، اور جو پاکستانی عوام ان سے عقیدت رکھتے ہیں اس کا بھی اظہار کیا، اور خاص طور پہ یہاں پر ناظرین جس انداز میں برطانیہ کی حکومت نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئی ہے، جس انداز میں پاکستان کو مدد فراہم کی ہے، اس پر بھی وزیر اعظم نے ان کا مشکور ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کی اس جیسچر کو، اس طریقہ کار کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو ملکہ الزبتھ 2 دفعہ پاکستان یہاں پر آئیں، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا، ایک دفعہ 1961 میں اور ایک دفعہ 1996 میں۔ ان کے بیٹے جو ابھی تخت نشین ہوئے ہیں، جن کی سیریمنی ابھی ساری تدفین کے بعد پھر اناؤنس کیا جائے گا شاہی طریقہ کار سے، وہ بھی ایک سیریمنی مکمل طور پہ جو ہے وہ ہوگی، وہ بھی پاکستان آئے تھے 1997 میں، اور جب یہ ملکہ پاکستان پہنچی ہیں تو پوری دنیا کے اخباریں جو ہے وہ فرنٹ لائن پیج پر ان کی جو تصویریں آئی ہیں، اور پاکستان نے جس انداز میں پرتپاک استقبال کیا ہے یقینی طور پہ وہ یاد رکھا جائے گا، اور انہوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کو، پاکستان کے لوگوں کو بے حد سراہا اور اپنی محبت کا ان سے اظہار کیا۔ 15 ممالک کی یہ ملکہ رہیں، 70 سال یعنی کہ 7 دہائیاں انہوں نے جو ہے وہ راج کیا، اور پھر 8 ستمبر کو بالآخر 96 برس کی عمر میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ جو اب مناظر دیکھ رہے ہیں ویسٹ منسٹر ابے سے، اب ہائیڈ پارک لے جایا جا رہا ہے جسد خاکی ملکہ کے تابوت کو، اور سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی جا رہی ہے۔ رائل نیوی کے جو گارڈز ہیں وہ 142 آفیسرز تعینات کیے گئے ہیں رائل نیوی کے، جو 2 میل تک انہوں نے اس تابوت کو گارڈ کیا، آنر دیا، اور اب اس کو ہائیڈ پارک میں پہنچایا جائے گا، اور ہائیڈ پارک پہنچنے کے بعد آخری رسومات کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور وہاں پر صرف 800 مہمانوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، صرف 800 مہمانوں کا ہی وہاں پر انتظام ہوگا، جبکہ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ
کچھ دیر قبل کے ہیں، جہاں ملکہ کے تابوت کو لے جایا گیا اور اس کے بعد ویسٹ منسٹر ابے میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ 1 منٹ کے وقفے سے 96 مرتبہ گھنٹیاں بجائی گئیں تاکہ ملکہ کے خدمات کا اعتراف کیا جا سکے بطور حکمران، بطور شاہی سرپرست برطانیہ کی، اور انہوں نے جو خدمات سر انجام دیں، ان کے فلاحی کام، دنیا بھر میں جن رفاہی اداروں کی انہوں نے سربراہی کی، دولت مشترکہ کی وہ سربراہی کرتی رہیں، اس حوالے سے ان کی تمام خدمات کا اعتراف کرنا ان سروسز میں شامل تھا۔ اور اب چونکہ انہیں آخری ان کی رسومات ادا کرنے کے لیے ہائیڈ پارک پہنچایا جائے گا، جہاں پر ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی 96 سالہ ملکہ کا 70 سالہ جو اقتدار تھا وہ آج تاج کی صورت میں ان سے الگ ہو جائے گا۔ گو کہ 8 ستمبر کو ناظرین ہم نے دیکھا 8 ستمبر کو ان کی وفات کی خبر سامنے آئی، ان کا انتقال ہوا، اور اس حوالے سے شاہی خاندان نے اس کی تصدیق بھی کی، لیکن اس کے بعد برطانیہ میں قومی پرچم سرنگوں رہا برطانیہ کا، ساتھ ساتھ قومی سطح پر سوگ کا اعلان بھی کیا گیا۔ بہت ساری سرکاری ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جنہیں معطل کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، اور چونکہ سرکاری امور سر انجام دینے کے لیے، بادشاہت کے امور انجام دینے کے لیے کنگ چارلز سوم نے اقتدار سنبھالا، لیکن ان کی تاج پوشی کا باقاعدہ انتظام اور باقاعدہ جو تقریب ہے وہ ملکہ کی تدفین کے بعد ہوگی۔ تاہم آج کی تقریب میں شاہی خاندان کے افراد شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کنگ چارلز اور خاندان کے دیگر افراد بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کنگ چارلز کے بھائی بھی شریک ہیں، جبکہ ان کے جو ولی عہد ہیں شاہی خاندان کے وہ بھی شریک ہیں۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी मुबाहिसे का मरकज़ बच्चों की हालत इज़ार होना चाहिए। सैलाब की तबाही ने लाखों बच्चों को मुतासिर किया है। तकरीबन 500 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। हमें मुतासरा बच्चों की हालत इज़ार बेहतर बनाने और उनके मुस्तकबिल के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक एक तस्वीरी नुमाइश जारी है। माहौलियात से हलाकतें, इसके उन्वान से होने वाली इस तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही को उजागर किया गया है। ये तस्वीरी नुमाइश रवा माह की 25 तारीख तक जारी रहेगी। नुमाइश देखने के लिए आने वालों को पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर इसके असरात और तबाही के मनाजिर देखने को मिलेंगे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मिशन के ताउन से माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासरा इलाकों की तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद की गई है और 25 सितंबर तक ये नुमाइश जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी हो रहा है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक एक तस्वीरी नुमाइश जारी है और इसका उन्वान है माहौलियात से हलाकतें। इस तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही को उजागर किया गया है, जबकि पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब की वजह से हलाकतें होने और इसके मौसमी तब्दीली के असरात की वजह से पाकिस्तान में जो सैलाब आया है इसको उजागर किया जा रहा है इस तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने क्लाइमेट वीक और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हुई हैं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान क्लाइमेट वीक में पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती तब्दीली के असरात और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से दुनिया को आगाह करेंगी। वो वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत भी करेंगी और मुख्तलिफ ममालिक के वुज़रा, नुमाइंदगान और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी उनकी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात पर खुसूसी बंद कमरा इजलास भी मुनक्किद करेगी। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान क्लाइमेट वीक और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करने के लिए अमरीका रवाना हो गई हैं और इस रवानगी में उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान को जो माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं और जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उस हवाले से आगाह करेंगी। नाज़रीन, मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई हैं। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस इला ग़ज़र का गाँव बूबर शदीद मुतासिर हुआ। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन तारिक बट से। ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका बुबर है और मैं एक चश्मे के साथ मौजूद हूँ। ये बात नाकाबिले यकीन है कि आज से चंद दिन पहले तक यहाँ पर इस चश्मे का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ से काफ़ी दूर एक अदद नाला है जहाँ पर आज से कुछ दिन पहले बारिशों के बायस सैलाब आया और सैलाब के साथ ये बड़े बड़े पत्थर आए और अचानक जो है इन पत्थरों की वजह से उस जो सैलाबी रैला है उसने अपना रुख बदला और यहाँ आबादी की तरफ आ गया। इस जगह पर तकरीबन ये बुबर के मकाम पर यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद घरों का एक गांव था और जिसमें से मुझे बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 से ज़ायद जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों के बागात थे, खुबानी के, अखरोट के, अंगूर के दरख्त थे। तकरीबन 1000 से ऊपर पॉपुलेशन जो है ना इनडायरेक्टली इसकी वजह से इफेक्ट हुई है। 10 जो है ना जाने यहाँ पे चली गई हैं। फसलें जो है ना यहाँ पे पानी नहीं मिलने की वजह से काफ़ी तबाह नुकसान हो गया उनको। मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरा फ्रूट के बागात और मेरी फसलें, मेरी माल मवेशी सब कुछ तबाह हो चुकी है। आका वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने हमें अलर्ट किया हुआ था पहले कि अगर अलर्ट न किया होता तो हमारी कई जानें ज़ाया हो सकती थी। ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। अगर हम जो है वो कार्बन के अखराज की बात करें, आलमी सतह पर आधे फीसद से भी कम जो है उसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन है और फिर भी जो है हम जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की जो तरक्की है उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। हसन तारिक भट्ट आगाह कर रहे थे हमें मौसमी तब्दीलियों के बायस पूरे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। गैर मामूली बारिशें हुई। गिलगित बल्तिस्तान के गांव बूबर में जो
तबाही हुई उसके मनाजिर आप हमें दिखा रहे थे। हसन तारिक भट्ट की रिपोर्ट में आपने तफसील से मनाजिर भी देखे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपको दोबारा लंदन लिए चलते हैं। बराह रास्त मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पूरे दिन से विलिंगटन चर्च मलका एलिज़ाबेथ की मैयत को लेके जाया गया पूरे एजाज़ के साथ, और अब उनको सेंट चैपल की जानिब लेके जाया जा रहा है। ये बराह रास्त मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं। मलका एलिज़ाबेथ दोइम की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरी दुनिया से ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं की बात करें, नुमाया शख्सियात की बात करें तो वो इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की सुबह जो है वो किंग सोइम से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इजहार अफसोस भी किया, और जो सैलाब मुतासरीन की मदद की गई है बरतानवी हुकूमत की जानिब से, उन पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसकी बरक्स अगर हम देखें तो किंग चार्ल्स सोइम ने भी लोगों का जिस अंदाज़ में वो अकीदत और एहतराम का इजहार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का उन्होंने बेहद शुक्रिया भी अदा किया। आखिर रसूमात नाज़रीन मलका एलिज़ाबेथ दोइम की इस वक्त जारी हैं। 7 दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ 8 सितंबर को अपनी रिहाइश का बेलमोर में वफ़ात पा गई थी। 15 ममालिक की मलिका हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और वेस्ट इंडीज़ के दीगर ममालिक शामिल हैं। 25 बरस की उम्र में तख्त नशीन हुई मलका एलिज़ाबेथ, और अब उनकी वफ़ात के बाद किंग चार्ल्स दी थर्ड ने तख्त संभाला है, और तख्त नशीनी की जो रसूमात हैं, जो तरीक़ाकार है, शाही तरीक़ाकार, उसको फ़िल वक्त मुलतवी किया गया है, मुनक़ता किया गया है। ज़ाहिर है जब तक ये आखिरी रसूमात अदा नहीं हो जाती उस वक्त तक ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये बराह रास्त मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। रिजवान, अगर हम बात करें शाही ख़ानदान की और शाही एजाज़ की, तो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वहाँ बादशाहत का सिलसिला है, तो बहुत प्रोटोकॉल के साथ चीज़ों को आगे लेके जाया जाता है। थोड़ा अगर हम अपने नाज़रीन को बताना चाहें कि जब उनकी वफ़ात की खबर मिली तो उसके बाद ये तरीक़ाकार होता है कि कौमी परचम को जो है वो सिर नगू कर दिया जाता है। फिर दूसरा तोपों की सलामी दी जाती है। तीसरा महल के बाहर नोटिस आवेज़ा किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि शाही ख़ानदान की जानिब से कि उनके ख़ानदान का ये फ़र्द अब दुनिया में नहीं रहा, और लोगों को ये इजाज़त दी जाती है कि वो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आ सकते हैं और दीदार कर सकते हैं। उसके अलावा घंटियाँ बजा दी जाती हैं। घंटियाँ बजाने का मकसद ये होता है कि महल के दरवाजे लोगों के लिए खुल चुके हैं और अब वो आ सकते हैं और दीदार कर सकते हैं। फिर दावतनामे भेजने का सिलसिला होता है कि जब तदफीन और रसूमात के आखिरी मराहिल में दाखिल हुआ जाता है तो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से सरबराहान मुमलिकत हैं, नुमाइंदगान हैं, जिनको इनवाइट किया जाना है, बुलाया जाना है, ताकि वो इस तकरीब में जो है वो शिरकत कर सके। एक तवील फहरिस्त है रिजवान, अगर हम उसमें जाएं। फिर जब घंटियाँ बजाई जाती हैं, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं पूरा दिन गाहे बगाहे घंटियाँ बज रही हैं, तो ये इस बात की सिग्निफिकेंट है, इस बात की अलामत है कि मलका जो है वो अब अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ जा रही हैं, और जब वो मुकम्मल तौर पर तदफीन उनकी कर दी जाएगी तो फिर घंटियां बजाने का जो सिलसिला है ये फिर रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाइड पार्क ले जाया जा रहा है मलका एलिज़ाबेथ दोम की मैयत को ताबूत, और इस मौके पर आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। सड़क के दोनों जानिब बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हाइड पार्क में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और मलका की तदफीन होगी। इस मौके पर जैसे नाज़िया आप आगाह करी थी कि जिस तरह से जो शाही प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं, जो कि हमारे दुनिया भर में जानने वाले जो जानना चाहते हैं शाही ख़ानदान के या उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उनके लिए इसमें दिलचस्पी भी होती है। और मजमूई तौर पर पूरी दुनिया से 500 से ज़्यादा आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं, जो इसके साथ साथ आखिरी रसूमात में सिर्फ 800 अफराद को शिरकत की दावत। बिल्कुल रिजवान, जो लोग तारीख जानना चाहते हैं, जो बादशाहत का सिलसिला किस तरह से बरतानिया में है और मलका एलिज़ाबेथ की पूरी तारीख इंतहाई दिलचस्प और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगी हमारे देखने वाले ज़रूर पढ़ें। वेस्टमिंस्टर एबे की मैंने कुछ डिटेल आपको बताई, लेकिन सारी डिटेल यहाँ पर शेयर नहीं की जा सकती। आप उसको पढ़ें, आपको पता चलेगा। फिर जहाँ पर विंड कैसल लेके जाया जा रहा है, उस हवाले से भी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर इवेंट से भरपूर इनकी तारीख रही है। न्यूज़ शो में एक दफ़ा फिर हम जिक्र करेंगे सैलाब से मुतासरा होने वाले अफराद का, और साथ साथ ऐसे मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं। हम आर्म फोर्सेस की बात करें, हम जो सिविल तंजीमें हैं उनकी बात करें, या फिर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लोगों की जानिब से इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, और ऐसी ही सरगर्मियाँ लाहौर में भी जारी हैं। बिल्कुल, और इसी हवाले से मौज़ूमुद्दीन ने रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी है। जिंदगी की सैकड़ों शमाएं बुझ चुकी हैं,
लाखों खानदान बेघर हो गए और उनके माल मवेशी और फसलें सैलाब में बह गई हैं। ऐसे में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद की मुकम्मल बहाली और उनकी मदद के लिए हर एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ से मुतासरीन को कपड़े, खाने पीने का सामान, अदवियात, खैमे और दीगर अशियाए ज़रूरिया पहुँचाई जा रही हैं। अहले लाहौर ने मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने के अज़म का अदा किया है। जितना हो सकता है 10 रुपये से लेकर 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, जितनी हो सके खुदा अगर उनकी मदद करे। बहुत परेशानी है, ये उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है आपको, 1000, 500, 50,000, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया उसमें से लाजमी उनकी मदद करें। पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने हमवतनों को अकेला नहीं छोड़ा और सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए हर शख्स इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी रखे हुए है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए बुनियादी पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। लाहौर में सेमिनार से खिताब कर रहे थे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और अपने खिताब में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल ही मंजिल तक पहुँचा सकता है। इस सेमिनार की क्या तफसीलात हैं, ये आगाह करेंगे इस हवाले से आसिम नसीर अपनी रिपोर्ट में। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में पहली पब्लिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सन 2000 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से आगे था, लेकिन आज भारत और बांग्लादेश समेत तमाम ममालिक हमसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मलेशिया विजन 2020 के जरिए तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान भी एक रोड मैप के जरिए आगे बढ़ सकता है। इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को गौर फिक्र करने और पैदावारी शोबों में मनसूबाबंदी के तहत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को इसकी सियासी अदम इस्तेहकाम और उसी से जुड़े हुए पॉलिसीज़ के अदम तसलसल ने इसकी मंजिल मुराद पे पहुँचने नहीं दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट के बगैर और सोशल फाउंडेशंस मजबूत किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र एक शराब या एक मिराज रहेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की का मुकाबला करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद लिए बगैर मौजूदा चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्की वसाइल में इजाफे के लिए हमें दौलत बढ़ाने, दौलत की तकसीम और ग्लोबल इकोनॉमी पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। इतनी बड़ी तबाही के बाद सैलाब ज़दा इलाकों के अफराद को दोबारा उनके पाँव पर खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे कबल नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रेक्टर डॉक्टर इजाज़ मुनीर और डीन डॉक्टर सफदर ने कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली, जबकि स्कॉलर्स व दीगर शुरका ने स्टडी पेपर्स भी पढ़े। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ बात करेंगे महफूज फैसले के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना के तहफ़ ज़ाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस में फ्री कैंप के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जी हाँ, और इसी हवाले से तफसील जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सदफ अफजल से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना तहफ़ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस केस की समाअत की। मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसहाक ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में तहफ़ की वसूली और उन्हें फरोख्त करने को खुद भी तस्लीम किया। इमरान खान के बकौल फरोख्त किए गए असासे जाहिर करने की जरूरत नहीं। नून लीग के वकील ने कहा कि असासे जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। इमरान खान हल्फिया बयान पर झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर इमरान खान के वकील ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान तोशाखाना से मुतालिक सवालों के जवाबात नहीं दे सके। तोशाखाना के तहफ़ को फरोख्त करने की रसीदें फ्राहम करना होंगी। आपको चाहिए था कि आप रसीद देते, अगर रसीद देते या बैंक का जो चेक नंबर है जिसके थ्रू आपने वसूल किए और फरोख्त किए वो चेक नंबर दे देते कि जी ये चीज़ मैंने इस दुकान पे फरोख्त की है, ये उसका चेक नंबर है, ये उसकी तारीख है। ना तारीख बता सके, ना रकम बता सके, ना रसीद दे सके। हमारा सवाल है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक हलफनामा जमा कराया है जो कि झूठा है, तो आपने एक झूठ बोला, आप उसका जवाब दे दें। अगर आप सच्चे हैं तो रसीदें ले आए। मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि अगर इमरान खान सादिक और अमीन थे तो रसीदें क्यों ना दिखा सके।
इमरान खान नाअहली रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में भिजवाया गया था। महफूज फैसला आने वाले कुछ दिनों में सुनाए जाने का इम्कान है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की ममनुआ फंड जब्तगी केस की समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अबूरी जवाब जमा करा दिया, जबकि मुकम्मल जवाब के लिए पीटीआई के वकील शाह खावर ने 8 हफ्ते का वक्त मांग लिया। पीटीआई के वकील ने कहा कि 10 साल पुराना रिकॉर्ड है जो बैरून ममालिक से मंगवाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पहले भी हफ्तों की बात करते करते 8 साल लग गए हैं, 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। शाह खावर की सदा पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की ममनुआ फंड जब्तगी केस की समाअत हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अबूरी जवाब जमा कराया, जबकि मजीद 8 हफ्ते की मोहलत मांगी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत ही दी गई है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदर मुनिल्ला ने केस की समाअत की और इस दौरान उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी फोरम है, ये अदालत आइन की बालादस्ती का एहतराम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आइन मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का फोरम फ्राहम करता है। अदालत आइनी इख्तियार वहाँ इस्तेमाल करती है जहाँ मुतल्लिका फोरम मौजूद ना हो। मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तय ना हो पाए तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास आता है। अगर कोई गलती हो गई तो फिर इसको दुरुस्त करने का फोरम मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने निसार दुरानी की तैनाती को चैलेंज किया था। नाज़रीन, हमारे न्यूज़ शो का वक्त तकरीबन अपने अख्ताम की जाने बढ़ रहा है, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपको आगाह करते चलें कि बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन के सिलसिले में दुआया तकरीब वेस्टमिंस्टर एबे में जारी है। इस वेस्टमिंस्टर एबे के बाद उन्हें हाइड पार्क ले जाया जा रहा है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत शाही ख़ानदान के अफराद शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत, उनके नुमाइंदे मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शरीक हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। हज़ारों की तादाद में लोग आप देख रहे हैं सड़क के दोनों अतराफ मौजूद हैं, फूल निछावर करके या दुआया कलमात पढ़ के मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मलिका एलिज़ाबेथ दोम से आखिरी रसूमात जारी हैं। विंडसर कासल में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ मलिका एलिज़ाबेथ दोम को सुपर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा। उनके मरहूम शौहर ड्यूक ऑफ एडिनबरा के साथ किंग जॉर्ज शशम मेमोरियल चैपल में उनको दफन कर दिया जाएगा। सरकारी हुकाम के मुताबिक मलिका की जो आखिरी रसूमात हैं उसको बरतानिया भर के पार्कों, चौराहों और जो सिनेमा घर हैं उसमें बड़ी तादाद में दिखाया जा रहा है। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे रिजवान हम लोगों को दिखा रहे हैं। ये लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और ये शाही एजाज़ है, ये तरीक़ाकार है जिसमें जिस तरीके से उनको जो है वो तदफीन के मराहिल की तरफ लेके जाया जा रहा है। आज उनकी तदफीन हो जाएगी और ये सारे मनाजिर दिखाने का एहतमाम किया गया है। बड़ी स्क्रीन पर ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। आम तातील है और इस मौके पर सरकारी दफातर और दीगर इदारे भी बंद रखे गए हैं। और नासिया, हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे, हाइड पार्क के मनाजिर हैं जो कि आखिरी आरामगाह होगी और हाइड पार्क में ही अब तफसीलात से आगाह करी थी जहाँ पर उनकी तदफीन होगी। वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, न सिर्फ बरतानिया भर से बल्कि यूरोप भर से लोग पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ 70 बरस तक अगर हुक्मरानी उन्होंने की है मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने, तो यकीनी तौर पर उनके रिफाही काम, उनकी जो कॉमनवेल्थ के लिए खदमात थी, उनको भी सराहा जा रहा है। 500 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत शिरकत कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। शाही ख़ानदान, हमने देखा माजी में कुछ दरारें भी आती रहीं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आती रहीं, लेकिन मलिका एलिज़ाबेथ दोम का ख़ासा ये था कि वो इस तरह की तमाम जो ज़ाती नौइयत की चीज़ें होती थी उन्हें बहुत ज़्यादा हवा नहीं दिया करती थी और उन्हें ना ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, बल्कि बाकायदा शाही रिवायात के मुताबिक ख़ानदानी उमूर भी, शाही उमूर भी सरअंजाम दिए और यही उनकी खासियत थी। और उन्हीं की इस खासियत को, उनकी 70 बरस की हुक्मरानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया भर से लोग आज मौजूद हैं। उनकी 96 बरस उम्र थी और 96 मरतबा घंटियाँ भी बजाई जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और ये घंटियों का सिलसिला भी कुछ देर बाद तक रहेगा, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। जंग अजीम दोइम में अगर आप लोग हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हों तो ज़रा देखिएगा किस अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया था, वो भी बहुत दिलचस्प है। इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इस हवाले से जूँ जूँ चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी हम आपके साथ लाइव मनाजिर शेयर करते जाएंगे। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए, आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।